formation of spindle fibers because of polymerization of a protein called tubulin. Is it okay? And if this tubulin monomers are stopped or prevented from polymerization, what will happen? Something like this will be seen, because if there is no spindle formation, there will be no separation of chromosomes and non-disjunction will be a result. One of the prominent chemical agent that is artificially used for inducing genomatic mutations or particularly polyploidy is colchicine. As you can see, a chemical agent called colchicine is responsible for inhibiting spindle formation, and hence it is responsible for causing non-disjunction, and hence it induces polyploidy. Is it okay? You must give a stress on this particular segment of the sentence, inhibiting spindle formation. So colchicine is an agent that causes prevention of polymerization of tubulin monomers, hence it prevents spindle formation, so it is responsible for non-disjunction, because of which it induces polyploidy. Is it okay? If we want to produce some polyploids in an artificial manner or intentionally, then we make use of colchicine. This is a very important question, which is directly asked as which of the following agent or which of the following chemical is used in order to induce polyploidy, or in other sense it can be asked like which of the following chemical agents is used or can prevent polymerization of the tubulin monomers. So answer should be directly a colchicine, which is a kind of plant product. Is it okay? Then this is an additional information which is linked with non-disjunctions, hence we are discussing it here. So let's come back to the main topic that we were discussing, the genomatic mutations, and we have already stated that genomatic mutations are of two types, polyploidy and aneuploidy. We are going to discuss the polyploidy in complete details, whatever required. Okay. So again, we are defining it like polyploidy is nothing but addition of one or more complete genomes to the existing set of chromosomes. Is it okay? And the root cause we have already seen. Here also again we are mentioning it that polyploidy is induced when non-disjunction occurs at all positions during gamete formation. मतलब जब गमेट्स बनते हैं तो गमेट्स बनने के समय पे सभी क्रोमोसोम्स की पोजीशन पे अगर नॉन डिसजंक्शन होता है, तब उसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा? पॉलीप्लॉइडी. एक एग्जांपल के तौर पे, एज एन एग्जांपल यू कैन सी हियर कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी सभी सेल्स नॉर्मली डिप्लॉयड है, लेकिन जब हम या कोई प्लांट एंजियोस्पर्म अगर गमेट फॉर्म करेगा तो वो क्या करेगा? वो मियोसिस से गमेट बनाएगा, और गमेट्स नॉर्मली कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड. दैट इज 2m becomes m. दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन. अगर इस तरह से चीजें होती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हैप्लॉइड गमेट मेल से और ऐसा ही हैप्लॉइड गमेट फीमेल से फ्यूज होकर फिर से डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा और उससे एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट जस्ट थिंक अ सिचुएशन लाइक दिस कि एक गमेटोसाइट मतलब गमेट बनाने वाली सेल जब मियोसिस में जाती है और वहां पे क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन होता है सभी पोजीशंस पे, तो क्या होगा? गमेट हैप्लॉइड की जगह डिप्लॉइड बनेगा. इज इट ओके? अब डिप्लॉइड गमेट किसी एक सेक्स में बना, फॉर एग्जांपल मेल में बना, और फीमेल में नॉर्मल गमेट बना. लेकिन जब मेल का एबनॉर्मल गमेट, क्योंकि देखो ये डिप्लॉइड गमेट कैसा है? एबनॉर्मल, क्योंकि गमेट को नॉर्मली कैसा होना चाहिए? हैप्लॉइड.
सो फिर ये डिप्लॉइड गमेट जो कि एब्नॉर्मल है वो अगर अगले सेक्स से आने वाले नॉर्मल गमेट मतलब हैप्लॉइड गमेट के साथ फ्यूज करेगा, मतलब क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो वो कैसा बनेगा, वो बनेगा एब्नॉर्मल, मतलब डिप्लॉइड की जगह ट्रिप्लॉइड, मतलब 2n की जगह 3n। सो इस ट्रिप्लॉइड जाइगोट से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो भी एब्नॉर्मल प्रोड्यूस होगा। एब्नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई डिसीज ही होगा, एब्नॉर्मल का मतलब जो नॉर्मल से अलग होगा, क्योंकि उसमें जीनोम का नंबर 2 की जगह कितना है, 3 है। और ये क्यों हुआ, तो उसका रीजन तुम यहां देख सकते हो, नॉन डिसजंक्शन जो कब हुआ, गमेट फॉर्मेशन के समय किसी एक सेक्स में हो सकता है, ये दोनों ही सेक्सेस में हो। अगर ये दोनों ही सेक्सेस में एब्नॉर्मल गमेट्स बने तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड की जगह टेट्राप्लॉइड रिलेशन आ जाएगी। बट बेसिक चीज ये है कि इन दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे ट्रिप्लॉइड हो टेट्राप्लॉइड हो, नंबर ऑफ जीनोम्स मोर देन नॉर्मल है, मतलब 2n से ज्यादा है। सो वी आर कॉलिंग इट पॉलीप्लॉइडी। इज इट ओके? अगर हम इससे आगे जाके देखें, इफ वी गो फर्दर, तो फिर हम देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग पॉलीप्लॉइड में, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो खुद पॉलीप्लॉइड है, उसमें कितने तरह के जीनोम हैं, उस बेसिस पे पॉलीप्लॉइड्स के 2 प्रकार हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ जीनोम्स प्रेजेंट इन डुप्लीकेटेड फॉर्म विदिन इट, as you can see, autopolyploids and allopolyploids. Get the terms, autopolyploids and allopolyploids. Autopolyploids means auto, get the term, auto means same, allo means different. टर्मिनोलॉजी से हमको बहुत कुछ समझ में आता है, नाम को प्रॉपरली समझो, दैट इज ऑटो। ऑटो का मतलब हमेशा होता है सेम बायोलॉजिकल टर्म्स में, और अलो का मतलब हमेशा होता है डिफरेंट। सो थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। ऑटो पॉलीप्लॉइड मतलब क्या, सेम तरह का जीनोम एक या एक से ज्यादा बार रिपीटेड है, तो हम ऐसे पॉलीप्लॉइड को ऑटो पॉलीप्लॉइड कहेंगे। और अलो पॉलीप्लॉइड मतलब क्या, तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में जो कि पॉलीप्लॉइड है, मतलब जिसमें 2 से ज्यादा जीनोम्स है लेकिन एक से ज्यादा टाइप का जीनोम है, तो उसे हम कहेंगे अलो, डिफरेंट अलो पॉलीप्लॉइड। लाइक ऑटो पॉलीप्लॉइड में अगर हम ए को एक जीनोम कंसीडर करते हैं, एज यू कैन सी, तो नॉर्मल कंडीशन में ए का मतलब होता है डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, जो कि एक नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर ये 2a की जगह 3a या 4a हो जाए, तो ये हो जाएगा टेट्लॉइड या टेट्राप्लॉइड। इज इट ओके? लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पॉलीप्लॉइड्स भले ही हो, इस ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में ए इसी तरह का जीनोम रिपीट हुआ है, लाइक सेम टाइप का जीनोम बढ़ा है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, सेम, दैट इज ऑटो पॉलीप्लॉइड। लेकिन सोचो कि अगर हम कोई 2 रिलेटेड स्पीशीज के बीच हाइब्रिडाइजेशन करें, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि रिलेटेड स्पीशीज के बीच फ्यूजन करवाना। लाइक हमने एक ऑर्गेनिज्म लिया जिसका जीनोम हम इंडिकेट करते हैं ए से, और एक दूसरा रिलेटेड ऑर्गेनिज्म लिया जिसका जीनोम एग्जैक्टली इसके जैसा नहीं है, बट ऑर्गेनिज्म अलग होने के कारण उसका जीनोम भी अलग है, तो उसको हम इंडिकेट करते हैं से बी से। तो इन दोनों के बीच अगर हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाए और वो सक्सेसफुल हो, तो बनने वाला रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म कैसा बनेगा, ए बी, मतलब इसमें एक जीनोम ए जैसा है और दूसरा जीनोम बी जैसा, राइट? तो ये हो गया डिप्लॉइड लेकिन 2 अलग अलग जीनोम्स वाला। सो इसे हम कहेंगे डिप्लॉइड, लेकिन कैसा डिप्लॉइड, अलो डिप्लॉइड। अलो डिप्लॉइड का मतलब 2 अलग अलग जीनोम्स कंबाइन करके बना हुआ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ये पॉलीप्लॉइड नहीं है, ये डिप्लॉइड ही है, मतलब नॉर्मल ही है, लेकिन इस डिप्लॉइड से अलग कैसे है, तो तुम देखो
इस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक ही तरह का जीनोम 2 बार है, जबकि इस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीनोम ए टाइप का है और दूसरा जीनोम बी टाइप का। अब सोचो कि इस तरह के डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अगर नॉन डिसजंक्शन हो और इसमें अगर पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस हो तो उसका असर क्या होगा? कुछ इस तरह से चीजें दिखेंगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इस ऑर्गेनिज्म में 4 जीनोम्स है, 2 ए टाइप के और 2 बी टाइप के। तो ये हुआ अलोटेट्राप्लॉइड, मतलब ये भी पॉलीप्लॉइड है और ये टेट्राप्लॉइड भी पॉलीप्लॉइड है। लेकिन इस टेट्राप्लॉइड में और इस टेट्राप्लॉइड में फर्क क्या है? तो इस टेट्राप्लॉइड में एक ही तरह का जीनोम 4 बार रिपीटेड है, जबकि इस टेट्राप्लॉइड में 4 जीनोम्स 2 तरह के हैं, 2 ए टाइप के और 2 बी टाइप के। इसीलिए हम इन पॉलीप्लॉइड्स को कहेंगे ऑटोपॉलीप्लॉइड्स और इन पॉलीप्लॉइड्स को कहेंगे अलोपॉलीप्लॉइड्स। दोनों ही तरह के पॉलीप्लॉइड्स बनने के पीछे रीजन है नॉन डिसजंक्शन, लेकिन ऑटोपॉलीप्लॉइड्स हाइब्रिड नहीं होते जबकि अलोपॉलीप्लॉइड्स हाइब्रिड होते हैं। That's the main difference between two types of polyploids। रहा सवाल कि कौन से ऐसे क्रॉप्स या कौन सी ऐसी वैरायटीज हैं जो इन दो टाइप्स में आती है। तो here it is mentioned कि नॉर्मली हमको पता है जो वैरायटीज राइस की, मेज की या ग्राम्स की काफी वैरायटीज नेचुरली पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस होने से बनी है, दैट इज दे आर ऑटोपॉलीप्लॉइड्स। जबकि तुम्हारा टोबैको हो गया, मतलब तंबाकू जिसे हम कहते हैं, या फिर तुम्हारा वीट हो गया, गेहूं, या फिर तुम्हारा ट्रिटिकेट या रेफेनोगार्सिका जैसे कुछ क्रॉप्स है जो किस कैटेगरी में आते हैं? अलोपॉलीप्लॉइड्स, क्योंकि ये दो अलग अलग स्पीशीज को कंबाइन करके हाइब्रिडाइजेशन के बाद पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस होने से बने हैं। और अगर हम आर्टिफिशियली पॉलीप्लॉइड्स बनाना चाहे तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कॉल्चिसाइन का, क्योंकि ये ऐसा केमिकल है जो स्पिंडल फॉर्मेशन को रोककर आर्टिफिशियली नॉन डिसजंक्शन कॉज करवाता है और हम पॉलीप्लॉइड्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब अगली चीज या अगला टाइप जो जीनोमैटिक म्यूटेशंस का है वो है एन्यूप्लॉइडी। बट बिफोर वी गो ऑन टू एन्यूप्लॉइडी, जस्ट हैव अ proper look at all the things mentioned here, okay?